Hi everyone, welcome to the class. Welcome to Arpita Sharma classes. I am your educator Arpita Sharma, and today we are going to start with in the modern Indian history class number 6, the moderate phase of INC. As we all know, that establishment of Indian National Congress gave a political leverage to the Indian nationalist leaders. It was a very important phase when it came to establishing the INC. And how did the INC or the Indian National Congress got established? How did it originate? And after its origination, what were the two groups that were formed in INC? The moderate phase and the extremist phase, the Garam Dal and the Naram Dal. Both the groups we are going to study today, along with the most important leaders of the moderate phase. Okay. So before we start the class, I should let you know that the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is also given below in the description box. Okay. And before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy has released UPSC CSE GS plus optional combination for all of you. The GS optional combo. It is Unacademy's biggest discount that is going to be revealed for UPSC CSE aspirants. As you all know that when you prepare for UPSC, you need to prepare your optional also simultaneously. And optional has to be completed within 3 to 4 months, right? And it has to be completed 3 to 2 months before prelims, so that you can revise after prelims. Okay. So Unacademy has launched the GS plus UPSC CSE optional combo pack, okay, wherein you will be provided live classes, test series and quizzes, structured courses, and unlimited access to the classes and to the educator PDFs etc. in both GS category and optional category. तो GS और ऑप्शनल दोनों ही कैटेगरी की तैयारी आपको करवाई जाएगी एक ही साथ अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है. ऑल्सो वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. Now in the iconic subscription, again optional and GS subjects will be prepared, but what is the difference? That you will be getting your personal coach over here who will guide you, who will mentor you at every stage, every day. He will also provide you the disciplined timetable. He will also provide you with the dedicated, course structure, mains question and answer practice. He will, track your study details, study schedule, and also there will be interactive live classes wherein one-to-one you can ask all your doubts, clarify all your doubts with your mentor. Okay? As we all know, a mentor is very much required in this journey, right, to guide you if you are a beginner. Okay, so there is iconic subscription also wherein you will be getting optional also. The optional preparation will be done, GS preparation will also be done. And as you can see over here, यहाँ पर आप देख सकते हो, if you are taking plus iconic, अगर आप plus और iconic दोनों subscription साथ में लेते हो, then you can compare the prices, or if you just take the optional subscription, then also you can compare the prices. See, if you are just preparing for, let's say, history optional, ठीक है, तो for history optional 12 month subscription you will be paying 70,000. But if you are taking GS also, ठीक है, you are taking GS plus optional combination, that means all your GS subjects will be prepared by the educator and your optional also. In that case, only 88,705 rupees for 12 month. You can compare the price. सिर्फ ऑप्शनल लोगे तो 70,000 है और ऑप्शनल प्लस GS की प्रिपरेशन करोगे 88,000. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू कवर योर GS ऑल्सो अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल. आपका GS और ऑप्शनल दोनों ही कवर करने का आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है. एंड ओवर एंड अबव दिस यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑल्सो इफ यू यूज दिस कोड शर्मा20. अगर आप शर्मा20 कोड यूज करते हो तो आपको ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दिस 10% डिस्काउंट. तो बेसिकली आपका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप ऑप्शनल और GS दोनों का ही सब्सक्रिप्शन लेते हो. आइकॉनिक प्लस पे आप ऑप्शनल ले लो एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे GS का सब्सक्रिप्शन ले लो एंड 88,705 माइनस 10% डिस्काउंट. It will be easy for you. It is affordable also. It is the biggest discount that Unacademy is giving because after a few days the price will increase. तो अभी आपके पास मौका है. Link is given below in the description box. You can get this subscription and use this code to get 10% discount also. Okay. So on this note, this was the announcement for today. I hope you enjoyed this announcement. Now please take your subscription as early as possible. ठीक है, before the price rises again in the future. The first thing that you should know about Indian National Congress is when was it established. इसका establish कब हो, इसको establish कब किया गया था. ठीक है, it was established in 1885. 1885 में इसको establish किया गया था. ठीक है, so when it was established in 1885,
It is also known as the safety valve of the Indian nationalist leaders. इसको Indian nationalist leaders का safety valve भी कहा जाता है. What do you mean by safety valve? We'll understand that also. हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC. वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ INC. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. आज की क्लास आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दिस क्लास डिलीजेंटली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, it is divided basically into different phases. इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना आप डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, 2 phases emerged out of इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट was known as the moderate phase. पहले को बोलते थे moderate phase. सेकेंड was known as the extremist phase. इन हिंदी द एक्सट्रीमिस्ट इज नोन एज द गर्म दल. एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? गर्म दल. मॉडरेट को क्या बोला जाता है? नरम दल. ठीक है, बिकॉज द मॉडरेट्स वर नेवर वायलेंट. एक्सट्रीमिस्ट they used violence as their tool, but moderates did not use violence as their tool. They were very moderate, plus they were justifying the British administration also. They used to think that if we go against the British administration, then we will never be able to attain freedom. But if we support them, if we you can say justify their actions, then only we can expect any help from them. तो मॉडरेट्स का कहना था कि अगर हम इनके एक्शंस को, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे, ये हमें फ्रीडम अटेन नहीं करने देंगे. बट अगर हम इनको पैसिफाई करते रहेंगे, इनको मक्खन लगाते रहेंगे, फ्लैटरी करते रहेंगे, तो हो सकता है ये लोग हमारी बात सुने. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ INC, जब हम बात करते हैं INC के, राइट इट डाउन. द फर्स्ट फेज ऑफ INC, Indian National Congress. The year was 1885 to 1915. Till 1915 we saw the first phase of Indian National Congress. And this first phase of Indian National Congress was dominated by, कौन dominate कर रहा था इस phase को? Dominated by the moderates, that is the नरम दल. ठीक है, the moderates were the one who used to dominate the first phase from 1885 to 1915. ठीक है, now this 1915 era, when it ended, जब ये era end होना शुरू हुआ, when it ended, we saw the rise of extremist. हमने देखा कि extremist जो हैं वो खड़ा होना शुरू होते हैं. The extremist, they started rising up with the end of 1915, and then till 1947 we see the extremist only who were actively participating in the Indian national freedom movement. ठीक है, this period 1885 to 1915, it is also known as the age of moderates. इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ मॉडरेट्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड दिस वाज द एज व्हेन वी सॉ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसी फेज में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश होते हुए देखा इन दिसंबर 1885. ठीक है, and it was established by who? Not by any Indian, but by a retired British civil servant which was known as A.O. Hume. ठीक है, इनका पूरा नाम था Alan Octavian Hume. His full name was Alan Octavian Hume and he was a British retired civil servant. ये जो थे, ये एक British retired civil servant थे. ठीक है, now the question comes, ma'am, why did a British retired civil servant help us? आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वाई डिड ही हेल्प अस? ही वॉज इन शिमला. रिटायरमेंट के बाद ये शिमला में रह रहे थे, इन्होंने हमारी मदद क्यों की? बिकॉज फर्स्ट थिंग वॉज दैट ही वॉज ही फेल्ट इमोशनली ड्रॉन टूवर्ड्स द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स. ठीक है, बिकॉज ही न्यू दैट ब्रिटिश पॉलिसीज आर वेरी क्रूअल, ब्रिटिश पॉलिसीज आर वेरी रुथलेस एंड रूड अगेंस्ट द इंडियंस, दे आर वेरी ऑप्रेसिव. ही एक्नॉलेज द फैक्ट, इन्होंने इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया कि A.O. ह्यूम ने बोला कि ब्रिटिश सिविल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी रिप्रेसिव हैं. ठीक है, काफ़ी सजेसिव ऑप्रेसिव हैं, काफ़ी सप्रेसिव हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट A.O. ह्यूम, ही वॉज द पर्सन हु फेल्ट कंपैशन टुवर्ड्स इंडियंस. इनको कंपैशनेट फीलिंग जो थी वो अराउज हो रही थी इंडियंस के प्रति. प्लस ही वॉज द फ्रेंड ऑफ दादा भाई नारोजी ऑल्सो. ठीक है, दादा भाई नारोजी जो है मॉडरेट लीडर माने जाते हैं और इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं. ही इज़ अ वेरी स्कॉलरली थिंकर एंड इकोनॉमिस्ट. So A.O. Hume was a friend of Dadabhai Naoroji also. That is why
he kept the demand of the moderate leaders to establish a political party in front of Lord Dufferin, who was the Governor General at that time. Okay, and he also convinced the British Parliament to allow Indians to establish a political party. A.O. ह्यूम ने अपने फ्रेंड दादा भाई नारोजी के कहने पर, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी सजेशन दिया कि आपको अलाउ करना चाहिए इंडियंस को एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने के लिए. एंड सेकेंड पॉइंट वॉज, इधर सेकेंड पॉइंट आता है that A.O. Hume knew that again after 1857's revolt, Indians are again rising up. They are again, feeling very discomforted, very dissatisfied with the British administration. So in the future, this dissatisfaction might take the shape of another revolt. ठीक है. So in order to remove the possibility of a future revolt, he guided Indians to channelize their opinions through a political party in front of the Britishers. Revolt of 1857, what happened? People in different parts of India, they revolted against the British administration. So it became very tough for the Britishers to control the revolt, right? So A.O. Hume, to avoid such confrontation, to avoid such revolt, what he did, he suggested the Indians to, create a political platform through which they can channelize their voice, they can channelize their dissatisfaction. ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि अलग अलग पार्ट्स, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी का सजेशन दिया. एंड दिस सजेशन इज नोन एज द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. इस सजेशन को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. सेफ्टी वॉल्व, व्हाट इज इट, दैट यू आर नॉट individually channelizing your dissatisfaction or your issues in front of the British government, but you are grouping it together and channelizing it through a political platform. आप अपने डिस्कम्फर्ट को, डिसकॉन्टेंटमेंट को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू चैनलाइज कर रहे हो, सो दैट इन द फ्यूचर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट विल कम डाउन. ताकि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके के रिवोल्ट की कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. एंड दिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय दादा भाई नारोजी. इस थ्योरी को दादा भाई नारोजी ने भी सपोर्ट किया. ही ऑल्सो गिव हिज यू कैन से appreciation towards this theory that this is correct. Indians need a safety valve. अगर ऐसा ना हो कि हम बिखर जाएं अपने decisions, अपने demands को लेकर, इस वजह से हमें एक platform की ज़रूरत है. Plus INC was also required at that time because we had no particular leader to guide us. हमारे पास कोई mentor ही नहीं था, कोई leader ही नहीं था हमें guide करने के लिए. गांधी जी didn't come in 1885. He was not there in this period. वो तो 1915 के बाद यहाँ पर आए हैं. ठीक है. So that is why we required a platform to give us a direction, to give our nationalist emotions a direction against the Britishers. ठीक है. So that is why INC was established. ठीक है. Now A.O. Hume, he managed to convince British Parliament and Lord Dufferin also to establish this party. ठीक है. Now the name of INC, it was initially, the name of INC was, write it down, the Indian National Union. इनिशियल जो नाम था आईएनसी का वो था इंडियन नेशनल यूनियन. ठीक है, दिस वाज द इनिशियल नेम सजेस्टेड बाय A.O. ह्यूम. ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, दैट मीन्स ऑल द नेशनलिस्ट लीडर्स आर कमिंग टुगेदर, यूनाइटिंग टुगेदर. ओके, बट दादा भाई नारोजी, ही चेंज्ड द नेम ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, इन्होंने यूनियन से नाम चेंज कर दिया कांग्रेस पर. ठीक है, वाई, बिकॉज दिस वर्ड कांग्रेस वॉज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये जो वर्ड कांग्रेस है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिकॉज दादा भाई नारोजी वॉज वेरी inspired by the American constitution, by the way they had written American constitution. So that is why he took the word Congress from American constitution. Point clear हो गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Now the next question comes, आपका next question आता है, write it down. What was the real reason? What was the real reason for the establishment of Indian National Congress? Indian National Congress की establishment के लिए real reason क्या था? What was the real reason behind the establishment of this political party? Okay, so there are two broad theories. दो theories हैं जिनको follow किया जाता है historians के द्वारा. Historians they follow two theories. First is known as the mythical theory. ठीक है, पहली theory होती है आपकी mythical theory. ठीक है, and second is known as the realistic theory. Second is the realistic theory. Point clear?
So when we talk about the mythical theory, now this theory is suggested from the, it is propagated from the humanistic approach. इस theory के अंदर ना humanistic approach use किया गया है, ठीक है, write it down. In this theory the humanistic approach is used, ठीक है, humanistic approach use किया गया है, and that approach is of A.O. Hume. किसका approach है ये? A.O. Hume का approach है. Now A.O. Hume gave many factors, many reasons to establish this particular political party. Why? Because it is said that in this theory, it is said, humanistic approach की इस theory में कहा गया है that A.O. Hume, write it down, he was moved, A.O. Hume was deeply moved by the political plight, by the political plight of the Indians. ठीक है, उस वक्त इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है, वो सभी बहुत ही रिप्रेसिव थी. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द क्लास ऑल्सो, दैट ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द इंडियंस, एंड ही वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड बाय द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियंस. सो दैट इज वाई ही स्टैब्लिश्ड INC टू गिव वॉइस फॉर इंडियंस, ताकि इंडियंस को आवाज़ दी जा सके, एक पॉलिटिकल, ठीक है, आवाज़ दी जा सके. इस वजह से इन्होंने A.O. ह्यूम ने INC को स्टैब्लिश करने का आइडिया दिया. पॉइंट क्लियर? सो मिथिकल थ्योरी जो थी उसमें कहा गया कि A.O. ह्यूम जो है ही वॉज फीलिंग बैड फॉर इंडियंस, एंड दैट इज वाई टू चैनलाइज देयर वॉइस, टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक अप देयर डिमांड्स, to speak up for themselves, he gave the humanistic approach and established the INC. This is the mythical theory. ठीक है. Now coming on to realistic theory. अब बात करते हैं realistic theory की. अब अच्छा, ये भी important point है prelims के लिए कि आपको कैसे पता चलता है A.O. ह्यूम हमारे लिए फील कर रहे थे. How do you know that A.O. ह्यूम was thinking like that? So we can get to know about this from the biography of A.O. ह्यूम. A.O. ह्यूम के जो biographer थे उनका नाम था, write it down, this is important for prelims. The name of the biographer of A.O. Hume was William Wedderburn. ठीक है, इनका नाम था William Wedderburn. This was the name of the biographer of A.O. Hume who wrote the biography of A.O. Hume. ठीक है, so he wrote in that book about the humanistic approach of A.O. Hume, about how compassionate he was. ठीक है, पॉइंट क्लियर होगा यहाँ तक. अब बात आती है रियलिस्टिक थ्योरी की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिस्टिक थ्योरी. नाउ रियलिस्टिक थ्योरी, बिकॉज नाम ही रियलिस्टिक है तो कॉमन सेंस से आपको पता ही चल जाएगा कौन सी थ्योरी में वजन है. ठीक है, यू कैन अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू कैन डिड्यूस दैट विच थ्योरी इज मोर, you can say more related to the actual truth. That is the realistic theory. Realistic का मतलब क्या है? जो जितना रियल है, कितना ट्रू है. ठीक है, तो रियलिस्टिक थ्योरी says, आपकी रियलिस्टिक थ्योरी बोलती है that the extremist elements in India like लाला लाजपत राय, like बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, these were extremists, not moderates. लाल बाल पाल जो थे वो आपके extremist थे. ठीक है, they laid down the theory of safety valve. इन्होंने रियलिस्टिक थ्योरी में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात की. ठीक है, एंड दे पॉइंटेड इट आउट दैट लाला लाजपत राय रोट 2 बुक्स ऑल्सो ऑन दिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी. फर्स्ट बुक वॉज अनहैप्पी इंडिया, पहली किताब थी अनहैप्पी इंडिया, एंड सेकेंड बुक वॉज पंजाबी. ठीक है, दीज वर दी 2 बुक्स विच वर रिटन बाय लाला लाजपत राय. पॉइंट क्लियर? तो ये वो 2 किताबें थी जो लाला लाजपत राय ने लिखी थी. इसके अंदर he had mentioned in these 2 books how unhappy India was. ठीक है, he mentioned in this book how repressive the British rule was, and we wanted, he explained and criticized the policy of British also regarding the establishment of INC, and he said that at that time Indians, they required a voice, Indians, they required a platform, or else a revolt like condition was building up. अगर हमको ये INC नहीं मिलता तो एक रिवोल्ट जैसी कंडीशन बननी शुरू हो रही थी अर्ली 19th सेंचुरी में. ठीक है, एंड दैट कंडीशन कुड हैव डिस्ट्रॉयड नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, ठीक है, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दैट रिवोल्ट लाइक सिचुएशन वुड नॉट हैव जस्ट ruined the British administration and British policies and acts, but also it would have ruined our economy further. हमारी इकोनॉमी को भी फर्दर ये ruin कर देती, ख़त्म कर देती. ठीक है,
इस वजह से रियलिस्टिक थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो बिलीवेबल है कि हमको अपने डिमांड्स को चैनलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वरना रिवोल्ट तय था, रिवोल्ट फाइनल था. It was true that revolt would have taken place, a mass scale revolt would have taken place if we would have been denied from our political rights. अगर political rights नहीं मिलते तो ये रिवोल्ट लाइक सिचुएशन बननी पक्की थी. ठीक है, तो पहली थ्योरी बोलती है कि दया आ गई एओ ह्यूम को हमारे ऊपर. सेकेंड थ्योरी बोलती है कि उस वक्त हमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, बिकॉज नाउ द इंडियंस वर ऑल्सो बिकमिंग एजुकेटेड. अब इंडियंस भी पॉलिटिकली एजुकेट हो रहे थे, तो हमें अपनी वॉइस को चैनलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. ठीक है, बिकॉज वी बिलीव्ड दैट इंडियंस हैव टू रूल ओवर अस, दे हैव टू गिव अस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो. अगर इंडियंस को हम पर रूल, ब्रिटिशर्स को अगर हम पर रूल करना है, ब्रिटिशर्स वांट टू रूल ओवर अस, दे हैव टू गिव अस रिप्रेजेंटेशन. उनको हमें रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. तो विच थ्योरी इज मोर बिलीवेबल, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में. लेट मी नो आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी बिलीवेबल है. रियलिस्टिक थ्योरी इज मोर बिलीवेबल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. Okay, let's move forward. Realistic theory is more believable. Now, when we move forward, the first thing that we should know is what are the important leaders of Indian National Congress. इसके अलग अलग leaders कौन हैं. When we talk about Indian National Congress, A.O. Hume, he organized the first session of INC at Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Bombay in 1885. These points are important for prelims. ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. In 1885, right, we had the first session of Indian National Congress. ठीक है, and the first session here the president was वोमेश चंद्र बैनर्जी. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के वो थे WC बनर्जी. ही वॉज द प्रेसिडेंट. ठीक है, पॉइंट क्लियर. तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेशन के प्रेसिडेंट्स याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर द प्रेसिडेंट्स ऑफ first, second and third, the Congress meeting. So when we talk about Vomesh Chandra Banerjee, जब हम वोमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं, we should know some points about him. So let's study about वोमेश चंद्र बनर्जी first. सबसे पहले वोमेश चंद्र बनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. As you can see on the screen, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी he died in 1906. 1906 में इनकी डेथ होती है. And write it down, this is important for prelims. He was the first president, इसको लिख लीजिए. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC. ये INC के पहले प्रेसिडेंट थे. ही पास्ड अवे इन विच ईयर, कब इनका देहांत हुआ. ही पास्ड अवे ऑन 21st of July 1906. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वोमेश चंद्र बनर्जी, ही बिलोंग टू कैलकटा. ये कैलकटा को बिलोंग करते थे. ठीक है, एंड इन 1862 में इन्होंने एक लॉ फर्म ज्वाइन किया था. ही जॉइंड अ law firm in 1862. Remember this for prelims. ठीक है, in Calcutta only, where he was working as a clerk. जहाँ पर ये क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे. ठीक है, and here he got acquainted with the knowledge of law. यहाँ पर इनको लॉ की नॉलेज हुई. ठीक है, he understood the law and in 1864 में इन्होंने क्या किया, that he went to England. ब्रिटेन गए. he went to England to study law. He was so keen in studying law, he was so interested in law that he went to England to study law, and later he was also a member of bar. जो लॉ का बार काउंसिल होता है उसके मेंबर भी ये बने थे बाद में. ठीक है, एंड इन 1868 he returned to India. 4 साल बाद ये भारत आते हैं. ठीक है, एंड he came to India with the knowledge of law. ठीक है, एज अ लॉयर, एंड व्हेन ही केम टू इंडिया ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लीगली इन इंडिया. ठीक है, एंड ही हैड अ वेरी गुड रेप्यूटेशन एज अ बैरिस्टर. ये एक बैरिस्टर बन गए थे और इनकी रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी थी. बिकॉज ही वॉज अ बैरिस्टर, ही केम टू नो अबाउट द लीगल एंड पोलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया. दैट encouraged him, motivated him to use his knowledge to support India and India's national struggle. क्योंकि ये बैरिस्टर थे, लॉ की इनको सारी जानकारी थी. ही न्यू everything about the law, and that is why he could understand what wrong was happening in the Indian administration. ये समझ पा रहे थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या गड़बड़ हो रही है. ठीक है, so in 1882, write it down, he became the first Indian. In 1882 he became, just give me a second, he became the first Indian to be appointed
एज अ स्टैंडिंग काउंसिल, काउंसिल क्या होता है, हेल्प, एडवाइजरी, हेल्प प्रोवाइड जो आपको करते हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज अ स्टैंडिंग काउंसिल, ये पहले इंसान थे जिनको एज स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया गया टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ही वर्कड देयर फ्रॉम 1882 टू 1887 एज अ स्टैंडिंग काउंसिल, इन्होंने काम किया, बट देन ही अंडरस्टूड दैट वट एवर नॉलेज ही हैज, बिकॉज ही इज एन इंडियन, ही शुड यूज दैट नॉलेज टू हेल्प द फेलो इंडियंस, नॉट टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं इंडियन हूँ, तो मुझे इंडियंस की ही हेल्प करनी चाहिए, आई शुड हेल्प माई फेलो इंडियंस, माई फेलो ब्रदर्स। So that is why he after 1887 he started full time, he started helping the Indians, पूरी तरीके से इन्होंने इंडियंस को हेल्प करना शुरू किया, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट ही फेमसली डिफेंडेड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ऑल्सो इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। कैलकाटा की हाई कोर्ट में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के ऊपर केस लगा दिया गया था, उस केस में इन्होंने जिताया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज द सेम पर्सन हु वॉज द इंडियन सिविल सर्वेंट एंड ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑन द चार्जेस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते, बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, दे कुड नॉट एक्सेप्ट एन इंडियन टू बी सिटिंग एट सच अ हाई पोजीशन, सो दे रिमूव्ड हिम, सो ही फाइल्ड अ केस। तो उस केस में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की किसने हेल्प करी, WC बनर्जी ने। WC बनर्जी डिफेंडेड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन द हाई कोर्ट इन कैलकाटा। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक, ठीक है। नाउ ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी वंस मोर इन 1892, 1885 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इन 1885, ठीक है, एंड ऑल्सो इन 1892 व्हेन द सेशन वॉज कंडक्टेड इन इलाहाबाद, जब इलाहाबाद में सेशन हुआ था वहां भी ये प्रेसिडेंट थे, तो 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। ही पास्ड अवे एट कैलकाटा ओनली, कैलकाटा में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। Now second important person that we should study is, the second important person that we have is Dadabhai Naoroji. Again on Dadabhai Naoroji, a lot of questions they come in prelims. Dadabhai Naoroji, he was also known as the grand old man of India. Write it down. This question came in 2017. Grand old man of India भी कहा जाता है इनको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है सभी को, प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर। He is also known as the grand old man of India, ठीक है। And he gave, write it down, he gave the drain of wealth theory, इन्होंने ही drain of wealth theory दी थी, ठीक है। That Britishers, they are draining our economy, they are draining our wealth, they are giving us many cuts in the economic part and we are bleeding economically। इन्होंने कहा था कि economically हमें हर जगह cuts दे रहे हैं Britishers, we are bleeding and draining economically. This was the theory given by him. Because of this theory only we realized that Britishers are not here to assist us, not here to administer us, they are here to exploit us and loot us। हमें इनकी थ्योरी के बाद समझ आया कि ब्रिटिशर्स का जो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है ना यहाँ पर रहने का, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि वो हमारी हेल्प करें या हमें असिस्ट करें या रूल करें। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रेन अस, जब हम खाली हो जाएंगे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। वंस वी आर फुली एक्सप्लॉइटेड दे विल लीव अस, ठीक है। दे आर हियर टू जस्ट लूट अस, प्लंडर अस। सो इट इज सेड दैट on September 4th 2020 it was the 195th birth anniversary of दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी की 195th बर्थ एनिवर्सरी अभी September 4th को हुई है, ठीक है, 2020। एंड ही वॉज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन, कब इनकी पैदाइश कब हुई, 1825, ठीक है, इन द प्रेजेंट डे गुजरात, गुजरात में इनकी पैदाइश हुई थी, इन गुजरात ही वॉज बॉर्न, ठीक है। एंड ही सर्व्ड एज, राइट इट डाउन, इस चीज को लिख लीजिए, दैट ही सर्व्ड एज the first Indian member of British Parliament. He represented Indians in the British Parliament. British Parliament में जाकर इन्होंने भारतीयों को represent भी किया था, ठीक है। And next point is that he was closely involved with the Indian National Congress, ठीक है। Early phase में, extremist phase में नहीं, not in the extremist phase, in the early moderate phase he was closely associated with Indian National Congress and he took the matter in his hand. He raised our opinions through the Indian National Congress and also in the British Parliament. And write it down, the next point is that his first agitation, ठीक है, his first agitation was in 1859.
1859 में इन्होंने पहली बार अपना वॉइस रेज किया था एंड ही स्पोक अगेंस्ट, राइट इट डाउन, किसके अगेंस्ट बात की थी इन्होंने 1859 में? ही स्पोक अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट, ही स्पोक अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट टू द इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, द रेसिस्ट अप्रोच ऑफ द ब्रिटिशर्स वाइल रिक्रूटिंग द इंडियंस टू द सिविल सर्विसेज, इसके अगेंस्ट इन्होंने अपना एजुटेशन व्यक्त की थी, अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे, अपना जो गुस्सा है, क्रोध है वो व्यक्त किया था, ठीक है, प्रोटेस्ट जो है इन्होंने व्यक्त किया था। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? सो हिज फर्स्ट एजिटेशन और हिज फर्स्ट प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द रिक्रूटमेंट टू इंडियन सिविल सर्विस इन 1859, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ व्हेन वी लुक एट द टाइम पीरियड ऑफ 1865 एंड 1866, ये जो हम टाइम पीरियड देखते हैं, he helped in founding the, write it down, he helped found the London Indian Society. This is important for prelims. The London Indian Society, ठीक है, he helped establish the London Indian Society and the East India Association. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इन्होंने एस्टैब्लिश किए 1865 एंड 66 में, ठीक है। दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज द वर्क ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, क्या काम था इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का? टू ब्रिंग, राइट इट डाउन, टू ब्रिंग द नेशनलिस्ट, टू ब्रिंग द नेशनलिस्ट इंडियंस एंड sympathetic Britons, that is Britons means the Britishers, on one platform, ताकि जितने भी ऐसे ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, सिंपैथी रखते हैं, और जितने इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर आकर अपनी बात रख सकें, so that both the Britishers who are sympathetic with Indians and the Indian nationalist leaders, they can come on one platform and keep their point forward. So he did not establish them, he helped to found these organizations, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गई? इन्होंने हेल्प किया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश करने में, ठीक है। अब क्योंकि दादाभाई नारोजी एट दैट टाइम वाज ए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी एजुकेटेड, वेरी स्कॉलरली पर्सन, सो हिज हेल्प was required। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल व्यू देना है, फॉर्मल बनाना है, तो दादाभाई नारोजी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती थी, ठीक है। नाउ ही ऑल्सो बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी भी बने, एंड एज द सेक्रेटरी ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया सेक्रेटरी के तौर पर कि लोगों तक इसके लिए फंड्स ले सके और लोगों को समझा सकें कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्यों जरूरी है। धीरज, चलो नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ लेते हैं दादाभाई नारोजी के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ कम्स 1885 का पीरियड, ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 1885 में ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए किसके? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, ठीक है। ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, द ईयर ऑल्सो एंड द एसोसिएशन ऑल्सो, ठीक है। एंड ही वॉज नॉमिनेटेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको नॉमिनेट भी किया गया। बाय हु, किसके द्वारा किया गया? बाय द गवर्नर, राइट इट डाउन, लॉर्ड रे, ठीक है। लॉर्ड रे वॉज द गवर्नर हु अपॉइंटेड हिम as the member of Bombay Legislative Council. Point clear? So from Bombay Legislative Council he started making people aware about the Indian National Congress. Bombay Legislative Council में as member बैठे और वहीं लोगों को अवेयर करने लगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसके एजेंडा के बारे में, उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। पॉइंट क्लियर? नाउ ही बिकेम, यू कैन से दैट ही बिकेम द प्रेसिडेंट, write it down, he became the Congress president of Congress thrice, 3 बार बने थे, ठीक है। फर्स्ट इन 1886, देन सेकंड इन, पहला 1886 में, सेकंड इन 1893, ठीक है, सेकंड ये 1893 में, 1886, 1893 एंड 1906, these 3 times he became the president of Congress party. This is important for prelims, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब एक और पॉइंट है इनके बारे में, देयर इज वन मोर पॉइंट अबाउट हिम एंड दैट इज, वो पॉइंट ये है दैट इन 1895 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी, राइट इट डाउन, इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी,
ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बने 1895 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड इन 1895 ओनली, ठीक है, 1893, द ईयर इज 1893। ठीक है, तो 1893 में ये बने आईपीसी के मेंबर, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर। एंड इन द ईयर 1895 में ये किसके मेंबर बने? ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। ठीक है, राइट इट डाउन, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर। तो इंडिया के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता था उसके लिए जो रॉयल कमीशन तैयार किया गया था उसके मेंबर बने थे हमारे दादा भाई नारोजी, टू गिव द वॉइस टू द इंडियंस, ताकि इंडियंस को आवाज मिल सके। ठीक है, इंडियंस के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इंडियन पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फॉर्म अ कमिटी टू डिसाइड इंडियन एक्सपेंडिचर, यू नीड अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। आपको एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। विदाउट कंसल्टिंग द इंडियंस यू कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर देम। ठीक है, एंड ही रोट अ वेरी फेमस बुक। इन्होंने काफी फेमस किताब लिखी थी, दैट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द बुक वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, and un-British rule in India। ठीक है, and this book was written in 1901। 1901 में लिखी थी बुक, in which he gave the drain of wealth theory। यहाँ पर इन्होंने drain of wealth theory जो है वो इसी किताब में दी थी। The drain theory, it is known as the drain theory। ये बात याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द इंपीरियल ब्रिटेन। सो दिस पर्सनालिटी इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये जो पर्सनालिटी है ये हैं हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। समझ आ रही है बात? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज, ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट। ये हमारे पहले सिविल सर्वेंट थे। इंडियन पॉलिटिशियन भी थे। ही वॉज ऑल्सो आर इंडियन पॉलिटिशियन। ठीक है, नाउ ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। कहाँ पैदा हुए थे? कैलकाटा में पैदा हुए थे। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1848। ठीक है, एंड वी से दैट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वी कैन से दैट ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल एंड हाईली स्कॉलरली पर्सन। ये काफी इंटेलेक्चुअल थे और काफी स्कॉलरली इंसान थे। ठीक है, he also applied for, write it down, he also applied for the position of civil servant। ठीक है, so he applied for the Indian civil service examination। at that time it was very very tough for an Indian to clear the ICS examination। ICS एग्जाम को क्लियर करना एक इंडियन के लिए, भारतीय के लिए काफी टफ होता था। he cleared it। that shows the amount of knowledge that he had, that shows the amount of dedication, passion and willpower that he had to sit for the Indian civil service examination in itself is a big thing। उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि इनको हम जैसे तैसे निकाल दें पोजीशन से। ठीक है, so he belonged to the family of Brahmins and he sat for the Indian civil service examination, but just because he was an Indian and a Hindu, he was rejected। ठीक है, क्लियर करने के बाद भी, इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, ही वॉज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स जस्ट बिकॉज ही वॉज इंडियन। ठीक है, सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते इनको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एग्जाम से निकाल दिया गया। ठीक है, इनकी एज को गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया। ठीक है, कि आपकी एज तो सूटेबल ही नहीं है एग्जाम देने के लिए, एंड चीट करके इनको निकलवा दिया गया। ठीक है, सो यू कैन से दैट येस ही वॉज चीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड फाइनली ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट इन 1874। पॉइंट क्लियर? 1874 में इनको निकाल दिया गया। एक और रीजन कहा जाता है बिकॉज ही वॉज अ हिंदू, क्योंकि ये हिंदू थे एंड हिंदूज को इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं दी जा रही थी टू लोअर डाउन देयर प्राइड। उनकी प्राइड को कम करने के लिए, ब्राह्मण्स की प्राइड को कम करने के लिए इनको की पोजीशंस पे बिठाने से मना किया जाता था। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज दे वर वेरी स्कॉलरली पीपल। ठीक है, ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे, प्लस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ही वॉज पर्टिकुलरली वेरी स्कॉलरली एंड ही वॉज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट।
तो इसीलिए इनको पोजीशन से हटाया गया, क्योंकि अगर ये ICS में बैठ जाते और पास आप कह सकते हो पोजीशन इनको मिल जाती, तो हो सकता था ये इंडियन वेलफेयर के लिए काम करते यूजिंग द ब्रिटिश रिसोर्सेज. दैट इज वाई ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन. ही वॉज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंडियन वेलफेयर, द इंडियंस. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो जल्दी से बताएं. ठीक है, okay. Now which was the political party that he joined? It was Indian National Congress. इन्होंने Indian National Congress को join किया and he also founded, write it down, he also founded the INA, Indian National Association. ठीक है, he founded the Indian National Association. Indian National Association की इन्होंने रचना की. ठीक है, he founded this association in 1883. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, ये भी प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ना, ही वेलकम द मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम आने पढ़ने वाले हैं ना, उनको सपोर्ट भी किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने. ठीक है, एंड ही फाउंडेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टैब्लिश की थी एंड दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, लिख लीजिए इसको, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन इन द ईयर 1919. इट वॉज इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट. ठीक है, दिस वॉज established by Surendranath Banerjee in the year 1919. Again the year is very important and he is known as one of the founding members of Indian National Congress. इनको आर्किटेक्ट भी माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. He is considered as the architect of Indian National Congress, one of the founding members of Indian National Congress. पॉइंट क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से बताओ. सो ही इज द co-founder of Indian National Congress. ठीक है, point clear? So he worked with the Indian National Liberation Front from 1919 till 1925 and he worked with the Indian National Congress from 1883 till 1919. अब why did I not write 1885? Because 2 साल पहले जो आइडिया आया था वो इन्हीं के साथ मिलकर आइडिया सोचा गया था, प्लान किया गया था. So the planning stage of INC, he was associated with INC since the planning stage. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? तो वंस हिज एसोसिएशन विद INC ड्रॉप्ड, ही स्टार्टेड फाउंडिंग हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन. अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन अपने आइडियाज के बेसिस पे इन्होंने स्टैब्लिश की नेशनल लिबरेशन फ्रंट. ठीक है, जो कि 1925 तक ही चल पाई. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ओके, सो इफ द क्वेश्चन कम्स हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS एग्जामिनेशन, इट विल बी सत्येंद्रनाथ. वो सत्येंद्रनाथ हो गए, सेकंड सुरेंद्रनाथ हैं. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट उषा मेहता. ठीक है, अब उषा मेहता के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रीलिम्स में 2013 से क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं. शी वॉज अ गांधीयन. गांधीयन मीन्स यूज टू फॉलो दी गांधीयन आइडियोलॉजी. गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो किया करती थी. ठीक है, एंड शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर. ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं. पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? नाउ 25th of March 1920 is the time when she is the date when she died. So 25th March जो है वो इनके डेथ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, सॉरी 1920 she was born. ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लो, she was born. ठीक है, तो when we talk about she was born in 1920 it is celebrated as the birth anniversary. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं उषा मेहता की, she was given a very big responsibility. And what was that responsibility? She used to handle the All India Radio of Indian National Congress. Indian National Congress का जो All India Radio है ना, उसको ये कंट्रोल करती थी. She was the first woman to control All India Radio services of Indian National Congress. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो she was born in गुजरात. इनकी जो जन्म था वो गुजरात में हुआ था. ठीक है, एंड अगर हम उषा मेहता मैम की बात करें, शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेरी फेमस गांधीयन इन इंडिया. शी सॉ महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज जस्ट 5 years ऑफ एज. जब ये सिर्फ 5 साल की थी ना, तब इन्होंने पहली बार गांधी जी को देखा. एंड इट इज सेड दैट शी वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड ड्रॉन टुवर्ड्स गांधी जी सिंस दैट एज ओनली. 5 साल की छोटी सी एज से ही ये गांधी जी की तरफ ड्रॉ होती चली गई. शी एंटर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल व्हेन शी वाज जस्ट 8 years ऑफ एज. एट द एज ऑफ, मतलब 8 साल का बच्चा तो उसको अपने खुद के बारे में ही होश नहीं होता. एंड शी पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. कुछ लोग पैदा ही
किसी खास मकसद के लिए होते हैं. सम पीपल आर बॉर्न फॉर सम स्पेशल पर्पस. शी वॉज वन ऑफ देम. ठीक है. सो एट द एज ऑफ 8 शी बिकेम अ फ्रीडम फाइटर. 8 साल की एज में ये फ्रीडम फाइटर बन गई थी. ठीक है. एंड शी मार्च्ड अगेंस्ट, राइट इट डाउन, शी मार्च्ड अगेंस्ट द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन के अगेंस्ट इन्होंने मार्च किया. साइमन गो बैक. हर फादर वॉज अ जज. ठीक है. So her father also did not support the Britishers. Now it is said even as a teenager she took active participation in the freedom struggle. ठीक है. She also participated in publishing many books, many newspaper articles. ठीक है. And when she was very young, at the age of 10, she finally decided, I am going to spend my entire life for the service of this nation. ये आज़ाद हो और जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा करने में लगा दूंगी. एट द एज ऑफ 10 शी टुक दिस डिसीजन. 10 साल की एज में इन्होंने ये डिसीजन लिया था. ठीक है. नाउ इट इज सेड दैट इन द एज ऑफ, राइट इट डाउन, इन द ईयर ऑन 14th of August 1942, 14th August 1942 को शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ मिलकर शी स्टार्टेड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो. दिस क्वेश्चन केम इन 2013 प्रीलिम्स. इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स, शी स्टार्टेड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो. एंड द रेडियो यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस ऑफ गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर्स. ठीक है. तो इन्होंने रेडियो में क्या किया, रेडियो के थ्रू गांधी जी का मैसेज और बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स का जो मैसेज है वो स्प्रेड करने की कोशिश की. ठीक है. पॉइंट क्लियर. एंड दिस रेडियो वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय, राइट इट डाउन, दिस रेडियो वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय दी वेटरन सोशलिस्ट लीडर. एक बहुत ही बुजुर्ग सोशलिस्ट लीडर थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया. आई गेस आपको पता होगा इनका नाम. इनके नाम पर हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं. देर आर मेनी हॉस्पिटल्स ऑन हिज नेम, राम मनोहर लोहिया जी. ठीक है. सो ही हेल्प्ड उषा मेहता टू रन दिस सीक्रेट कांग्रेस रेडियो. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ओके. राम मनोहर लोहिया एंड उषा मेहता का आपको एसोसिएशन भी समझ आ गया. एंड इन द ईयर 2000, 11th of August, शी डाइड, शी पास्ड अवे. अभी कुछ 20 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है. ठीक है. पॉइंट क्लियर. नाउ शी इज कादम्बिनी गांगुली. ठीक है. राइट इट डाउन. ये हैं आपके कादम्बिनी गांगुली जी. ठीक है. I guess all of you are recognizing her. Now she was, write it down, the first woman in the British Empire, in the British Empire to receive a BA degree. पहली women graduate है ये जिनको BA की डिग्री मिली थी ब्रिटिश एम्पायर में. ठीक है. received a BA degree. So she was the first woman graduate of Calcutta University. कैलकटा यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला ग्रेजुएट हैं. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लेडी डॉक्टर्स ऑफ इंडिया. ठीक है. फर्स्ट लेडी डॉक्टर्स ऑफ इंडिया. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज लिख लीजिएगा. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. शी वॉज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ बंगाल. ये पहली डॉक्टर थी बंगाल की. ठीक है. एंड फर्स्ट वुमन who addressed the delegates who participated in the first session of Indian National Congress. बहुत स्कॉलरली महिला थी. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. और इतने स्कॉलरली इंसान को पहली बार, एक महिला को चांस दिया गया था कि आप पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को आप संबोधित करेंगी. कैन से दैट शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है. जो वेस्टर्न मेडिसिन को पढ़कर आई थी. शी स्टडीड द वेस्टर्न मेडिसिन. पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कादम्बिनी गांगुली जी के बारे में. दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कादम्बिनी गांगुली जी. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी, जब हम बात करते हैं आईएनसी के ऑब्जेक्टिव्स की, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट. एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट को एस्टैब्लिश करना. To politicize and politically educate people, because if people do not know anything about politics, how will they try to administer themselves? How can we fight for freedom? जब हमें पता ही नहीं है पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे खुद को एडमिनिस्टर करना है, तो कैसे फ्रीडम की बात करेंगे? So to politically educate people of India, this organization was necessary. Now to establish headquarter for a movement
ठीक है, इस मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार करना, पिलर तैयार करना, एक हेडक्वार्टर तैयार करना, इट वाज आल्सो द पर्पस ऑफ द INC. ठीक है. Now, to promote friendly relations among the nationalist political workers from different parts of the country. This was another objective because different parts of India, they were having their own demands, they were fighting their own battle. So, to mobilize them in order to unite them together, right, this प्लेटफॉर्म वॉज रिक्वायर्ड. अलग अलग पार्ट जो थे इंडिया के अलग अलग तरीके से एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको एक करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे एक मंच देने के लिए INC का बनना जरूरी था. ठीक है. एंड टू कल्टिवेट द एंटी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इन द माइंड ऑफ इंडियंस, इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, दिस प्लेटफॉर्म वॉज रिक्वायर्ड. इस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो मॉडरेट्स का अप्रोच क्या था? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ मॉडरेट्स? मॉडरेट्स यूज्ड टू बिलीव इन 3P. मॉडरेट्स जो थे वो 3P में बिलीव करते थे. व्हाट इज 3P? 3P वॉज पिटीशन, प्रेयर and protest. That means we should sign a petition to make the government accept our demands. We should pray to them, or else we should participate in protest. Protest means hunger strike. Protest का मतलब क्या होता है? Hunger strike. ठीक है, तो hunger strike पर चले जाया करते थे. ठीक है. So now the next important point is that they used to believe in the British justice. वो लोग बिलीव क्या करते थे? मॉडरेट्स जो थे, दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश जस्टिस. दे यूज्ड टू से दैट इफ वी कीप आवर पॉइंट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स विद कामनेस, ठीक है, विद पीस, देन दे विल एक्सेप्ट आवर डिमांड्स. अगर हम बिल्कुल पीस के साथ, शांति के साथ अपने पॉइंट सामने रखेंगे ब्रिटिशर्स के, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे हमारी डिमांड. दिस वॉज द मेंटालिटी ऑफ मॉडरेट्स विच वॉज नॉट रियल. इट वॉज नॉट ट्रू. दैट इज वाई द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दे गॉट डिवाइडेड. इसीलिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो डिवाइड हो गए थे इन 1907. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. इसी नोट पे हम सेशन को रैप अप कर रहे हैं. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस द ऑप्शनल एंड GS कॉम्बिनेशन जो आपका तैयार हुआ है. ऑप्शनल और GS का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो. ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर योर UPSC CSE, you can subscribe to Unacademy Plus. Use this code Sharma20 to get 10% discount. ठीक है, ये कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए. एंड द क्लास PDF will be uploaded on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Okay, thank you everyone for participating in the session.